डेफिनेटली एट 11 लाख कार में हेडरेस्ट नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग मिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग होंडा जैज़ का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। हमारे साथ मिस्टर सम्राट गुहा हैं। ही इज़ रिसेंटली बॉट दी होंडा जैज़। दिस इज़ द थर्ड जनरेशन होंडा जैज़। सो कब लिया? मैंने लिया 2021 जुलाई। दिस इज ये 2020 वाला लास्ट अपडेट, 2020 वाला जून वर्जन जो है अपडेटेड वाला, दैट इज द वर्जन। तो आपने आई थिंक क्या 1000 किलोमीटर आपने कवर किया? अप्रॉक्स 800 जस्ट नया जस्ट नया गाड़ी है। ओके, सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस गाड़ी का बेसिक, उनका बायर एक्सपीरियंस कैसा था, गाड़ी के बारे में उनका फील क्या है, और 5 पॉजिटिव्स 5 नेगेटिव्स। ऑफकोर्स गाड़ी काफ़ी नया है, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, बट एज ए न्यू यूज़र उनको कैसा लगता है गाड़ी के बारे में, उसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो होंडा जैज़ लेने का रीज़न क्या था? Yeah, first of all, thanks Partha for this interview and the review of this Honda Jazz Gadi. So definitely I am just following your channel for last couple of months. This is a good channel. Thank you. Viewers, first subscribe in the channel. That's my personal request to all of you. Thank you. So that is one of the things. See, this the thing is, I am just researching for all the cars. Okay. At least for 4 or 5 months. अच्छा, Previously मेरे पास मारुति वैगनर था. Wagon I just want to upgrade my car. ओके, जो आई जस्ट वांट टू अपग्रेड माई कार टू ए कॉम्पैक्ट एसयूवी और ए सेडान और ए कॉम्पैक्ट सेडान. ओके, सो व्हाट आई हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च. माई चॉइसेस आर इन वेन्यू, माई चॉइसेस वाज समथिंग इन काइगर. देन आई आल्सो आई गॉट रेनो काइगर आल्सो आई हैव डन. उसके बाद मैं i20 देखा. आई हैव गॉन थ्रू एल्ट्रोज, बट फाइनली द फर्स्ट लुक, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कार व्हाट आई हैव डन द फर्स्ट टेस्ट ड्राइव. अच्छा, ओके. तो first car or the brand value of Jazz or Honda you can say, and the look of this particular car, that affected me a lot. Okay. So I will tell you the details of what are the pros and what are the likely अंदर बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे. But as you feel as a brand ownership of a Honda car, that affect me the first one. Whenever I have just discussed with all my friends, जो shall I go to a Honda from Maruti or to Hyundai, so everybody suggests me go for a Honda, because definitely the brand value of Honda is much more better. Maybe I can say price wise Honda cars are little bit expensive in Indian situation, right. but the definitely ownership of a Honda car is always better, if I feel, compared to the other cars. Of course, engine smoothness तो engine smoothness, the low maintenance, yours is a 1.2 liter 4-cylinder engine. It's a 1.2 liter 4-cylinder. कौन सा वेरिएंट है ये? This is the VX model. So automatic transmission है? Automatic transmission. This So is CVT. a CVT. This is a CVT. Okay, so that is one of the best gearboxes in the industry. Correct. Great. So that is one of the major reason I have taken the CVT, because my major Mumbai requirement it is in the Mumbai traffic. So I am just totally fed up with the clutch brake, clutch brake. So paining is a long drive in the Mumbai traffic. Right. So I just choose this CVT variant. And definitely for a. तो अभी तक कितना चला है आपका? See, hardly I told you, that is hardly 800 kilometer I have driven. I have done only 800 ही हुआ अभी? 800 kilometer, which is 1.5 months, and I have done a long drive up to Lonavala, Khandala. लोनावाला तक आप गए? Okay. So that is only one long drive I have done. Mostly I have done doing on the city drive. Okay. So fine. So हम लोग अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं and we will be discussing about the pros and cons. और the 2020 Honda Jazz VX CVT वेरिएंट आपके लिए पेश है. So जैसे कि आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी थी and then you finally shortlisted Jazz. This is one of the reason I have chosen Jazz, so that uniqueness of my car will be there and the road presence. Second thing, if we are अच्छा, गाड़ी क्या चालू है? Because अच्छा AC ऑन है. because you will not able to गाड़ी चालू है? गाड़ी चालू है, you will not able to hear any sound. मेरे को सही में पता नहीं था गाड़ी चालू है, समझ में भी नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग. हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, आप देखो साउंड आपको मिलता है कि नहीं. कमेंट सेक्शन में आप बताना कि साउंड कुछ आया कि नहीं. मुझे तो नहीं आया. So it's very silent. So there is a very silent car. If you when you are starting the engine start करने के time there is no sound. Even once I am just asking my wife, आप एक काम करो, आप गाड़ी चलो. I just want to hear the sound of the engine. It is quite smooth. So सामने से कोई पेडल वगैरह जा रहे हैं, हम लोग जब गाड़ी पीछे जाते, I have to honk him, because he or she will not understand the car is coming behind. So as we are saying कि कौन-कौन सा गाड़ी आपने देखा था? So
एक तो मैंने देखा था वेन्यू, बिकॉज मेरा दिमाग में कुछ था गो फॉर ए कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप। मैंने किया देखा, मैंने किया सोनेट वाज ऑफ माय चॉइस। देन मैंने i20 देखा, मैं अल्ट्रॉस देखा। तो दीज आर द 4-5 कार्स। मैंने लास्ट में मैं काइगर भी देखा, दैट इज ऑल्सो ए गुड कार। बट फाइनली जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज जब भी मैं रिसर्च कर रहा था, आई हैव सीन फर्स्ट दिस कार जैज। First you saw this and then you went for the others. Then I went for all the other 5 cars. But वो जो first impression मेरा इस गाड़ी के लिए आया था, that lastly I have taken a decision of this car. Okay. So ये आपको बॉम्बे में ऑन रोड कितना पड़ा? मुंबई में? It is approx 10.8. 10 point on Mumbai. Did you try to negotiate some deals and all? Definitely. With the deals only I have seen, to all the corporate discount and everything, I got it on 10.8. There are little bit small accessories I've added. Approx what did you get for you? मतलब अलग से क्या लगवाया आपने? अलग से मैंने एक शार्क फिन एंटेना लगवाया। Okay. तो दैट एनहांस द लुक ऑफ द कार। देन मैंने सामने से इसका जो लाइट्स है, तो नॉर्मल हैलोजन लाइट से मैंने इसको एलईडी में कन्वर्ट किया। अच्छा, इसका हेडलाइट्स को? यस, स्मॉल थिंग्स लाइक यू सी, ये जैज में एक अच्छा आता है, व्हेन यू ओपन द डोर देयर इज अ काइंड ऑफ एलईडी स्ट्रिप्स ऑन द व्हेन यू आर एंटरिंग द डोर। स्कफ प्लेट वो है, तो वो मैंने ऐड करवाया। देन स्मॉल थिंग्स लाइक अ मड फ्लैप। मुझे स्पॉइलर दिखा पीछे, स्पॉइलर भी आपने अलग से लगवाया? पीछे एक्स्ट्रा स्पॉइलर मैंने लगाया। अच्छा लगवाया, वो भी थोड़ा एनहांस करता है इसका, उससे लुक तो डेफिनेटली लुक थोड़ा एनहांस दिखेगा वीडियो में। So these are the 4-5 things I've added, which added me approx another 20,000 rupees. Achha. So all inclusively, it is came as a 10.85 something like this. So now coming to the core aspect of the video, कि जो भी viewers में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जैज कंसिडर कर रहे होंगे अपने लिए। Correct. So हम लोग we have to be most unbiased. See, आप ओनर हो, शायद आपको थोड़ा पॉजिटिव लगेगा गाड़ी के बारे में, बट नेगेटिव्स भी आप बताइएगा प्लीज। वी नॉर्मली डू 5+ पॉजिटिव्स एंड 5 नेगेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का है। डेफिनेटली। सो पॉजिटिव्स के बारे से स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग क्विकली पॉजिटिव्स कवर करेंगे, देन वील टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ द कार। सो पॉजिटिव्स आपको क्या लगता है? सी पार्थो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिविटी और द पॉजिटिव features of this car, first I just want to ask you to just show the entire inner space of the car, and it's massive. It's like a living room. It's a kind of living room. Like a living and room. It's massive. ये वाला segment में इतना बड़ा space, इतना बड़ा area, and you can see B2 hatchback में this is the having the highest cabin space per liter. Second is i20. Correct. Second thing, इसका जो आप देखोगे उसका जो head space है, I am not that much a taller person, but I have seen my friends who are just 6 feet taller having a Honda City. We'll be showing you the back seat and the driver's seat. See, I am 5'11", so with respect to me, I'll show you. So of course, आपका driver seat height adjustable है, so correct. The driver, I think, उतना problem. There is no problem. So इसका head space काफी अच्छा है, and you see the viewing span. मैं उसको पार्थो को मैं बोलूँगा next आपको दिखाने के लिए. So somebody is driving and somebody is sitting on the rear seat. He can see the entire view. It's a good. It's a 3 space. The viewing pane is given. A-pillar maybe there is a small thing on the back side of the thing. There is a small thing. So this is a good. इस segment में कोई गाड़ी में नहीं आता. This is a good viewing pane also. This is one of the best point. Second thing मैं बोलूँगा इसका जो driving modes है. As a CVT में इसका जो driving modes है, जैसे इसमें आपको दिखेगा आपका sports modes है. Parking है, reverse है, sports है, ready है. Next इसका आता है one of the good point of this thing is a paddle shifter. ओके, सो पॉजिटिव्स में आप पहला चीज बोलना चाह रहे हो कि केबिन स्पेस, मतलब द रियर सीट कंफर्ट बोल लो आप, ड्राइवर सीट कंफर्ट, करेक्ट। So next point you are talking about the pedal shifter. Pedal shifter and the driving modes. तो driving modes में it's very easy. तो CVT में क्या होता है ना, there is also one of the best gearboxes in the industry, CVT Honda. तो they are the best. CVT में क्या है, if you are a new driver who is just driving a manual to a CVT, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऑलवेज आपका लेग चला जाता है क्लच में, एंड आपका ऑलवेज गियर शिफ्टिंग का ट्राई आ जाता है। तो देयर इज ए दे हैव गिवन ए लॉकिंग फैसिलिटी। नॉब में लॉक है, तो यू हैव टू चेंज यू हैव टू अनलॉक दिस, देन ओनली यू कैन चेंज द मोड्स। देन नेक्स्ट थिंग इज द पैडल शिफ्टर। तो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग होंडा हैज गिवन, जहाँ पे आप हाईवे में जब आप स्पोर्ट्स मोड में हो, देन यू कैन हैव दिस पैडल शिफ्टर। तो पैडल शिफ्टर में क्या होता है, 60 के बाद यू आर अलाउड टू यूज, उसके नीचे पैडल शिफ्टर आपको पैडल शिफ्टर 40 के ऊपर भी आप कर सकते हो, बट मोस्टली आप जब हाईवे में चलते हो, इफ यू आर अगेन डूइंग द ब्रेक, तो पैडल शिफ्टर ऑटोमेटिक में फिर से आपको
नॉर्मल ड्राइविंग मोड में आ जाता है. अच्छा. तो बेटर यू यूज द पैडल शिफ्टर मोर देन 60 और 80 व्हेन देयर इज नो बम्प एज ए फ्रीवे और हाईवे. तो बेटर यूज ए पैडल शिफ्टर. नेक्स्ट आता है इसका क्रूज कंट्रोल. इवन दिस मॉडल इज हैविंग ए क्रूज कंट्रोल. अब स्पोर्ट्स मॉडल में जाके क्रूज कंट्रोल चालू कर दो, देन यू आर फ्री. So this is a new positive you're talking about. Is it inclusive in the previous one? Definitely, this is a new one. Cruise control. Cruise control is also a added feature on your driving mode. So first point I've covered you the space. Second point I've covered you the driving mode. Third point I will talk about the safety of this car. So I guess is a 4-star rating. हाँ, Asian इनका 4 star है. Is a 4-star rating. 2014 में they cleared the 4 star. So that is one of the good point they have covered. Next I will talk about the rear side cameras. Okay. So if you मैं आपको Reverse दिखाना parking चाहता हूँ camera, रिवर्स हाँ. पार्किंग में जो कैमरा है. We'll be showing that. हाँ, तो जो उसका जो क्लैरिटी है, उसका जो विजिबिलिटी, इट्स गुड एंड क्वाइट ओके. सो उसमें बिकॉज मेरा पहले वाला जो गाड़ी था, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रियर साइड कैमरा. तो ये वाला गाड़ी में मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ. दिस बिकॉज दिस लेंथ ऑफ द कार इज लिटिल बिट बिगर व्हाट आई एम यूजिंग. Previously. इससे ये मेरा काफ़ी आसानी होता है. तो आपको हाँ वो होता है. तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइविंग डायनामिक्स. थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस करते हैं. नॉर्मली देखा जाता है जो स्मूथ इंजन वाले गाड़ियाँ होते हैं, जैसे हुंडई हो गया, करेक्ट. और स्मूथ इंजन होता है बहुत, उसका स्टीयरिंग भी बहुत स्मूथ होता है. करेक्ट. So there are two types of customers. Correct. Half of them want steering feedback. Half of them feel that steering feedback का जरूरत नहीं है, smooth है. Correct. इसमें कैसा है? How is the steering feel? How does the steering feel? एक्चुअली मैं ऑलरेडी मारुति सुजुकी मैंने यूज करके आया. And when I'm using this car, it's a hell and heaven difference. So does it give you the feel of the road or is it बहुत smooth है? बहुत स्मूथ है, Okay. बट स्टेबल भी है. बहुत मतलब स्पीड इंक्रीज होता है तो स्टीयरिंग हार्ड होता है क्या? नहीं होता है. इट्स काफी स्टेबल स्टीयरिंग है. So people who are looking for smooth ride, Jazz is the car for you. Okay. So moving forward. Moving forward, I will talk about something on the seat, both for the rear seat, even on the driver's seat. Now, Parthu, you're sitting on the seat. How do you feel? Comfortability. See, they have given this kind of the side bolstering is really good. Yes. It is very nice. Seat is quite very comfortable. और लंबा सपोर्ट भी है. ऑफ कोर्स एडजस्टेबल शायद नहीं है लंबा सपोर्ट, बट हाँ लंबा सपोर्ट है. सीट इज कंफर्टेबल. Seat is comfortable. गुड अबाउट द सीट. Then जो ड्राइवर्स सीट में you can adjust the seat, even हाइट एडजस्टेबल. height adjustable seat is there. Okay. Then for the shorter height person, the visibility is quite good. तो here the visibility is quite good, so इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो सीट को. What about rear seat? रियर सीट में एक ही प्रॉब्लम जो होंडा का इस जैज में है, दैट इज देयर डोंट हैव एनी headrest on the rear seat. That will come in con. We'll discuss that because that's a safety related issue. We'll talk about that. But the space wise जो भी मैं बात करूँगा, you can just वीडियो में बने रहे. हाँ, कौन आ रहा है? So आप जब पीछे देखोगे, you can see 3 adults can sit properly. हाँ. And the well built adult, 3 adults can sit properly on मेरे the. जैसा बिल्ड का आई थिंक शायद दिक्कत होगा. ठीक है. बट हाँ मेरे जैसे 2.5 इज ओके. Yes. आई थिंक it's matching the category. B2 सेगमेंट में जो रियर सीट कंफर्ट है, Correct. I am talking about the width is same. Correct. Leg space is massive. It's like business class in aircraft. Correct. I will be showing you that. वो clip आपको दिखाएंगे. Leg space is massive in the rear seat. Correct. So even they have given this kind of armrest with a space, with a good storage. The Okay. armrest is there. Right. And even और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पार्थो, रिगार्डिंग ऑल द सेफ्टी. कभी भी आप गाड़ी को, दिस इज अ कीलेस एंट्री, इज ऑटोमेटिक स्टार्ट कीलेस एंट्री. तो यू डोंट हैव टू open the touch the button of the doors. You come closer with your key, you can Unlock easily unlock हो जाता है. Right. Even जो आपका डिक्की वाला जो डोर है, आराम से if you have Just you need to walk and just open it, that's open that thing. You have to just press one single button, Right. open कर सकते हो. और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ तो उसका बूट स्पेस के बारे में. दिस इज वन ऑफ द गुड बूट, बेस्ट बूट स्पेस आई हैव सीन इन दिस काइंड ऑफ सेगमेंट. 354 लीटर 354 लीटर का बूट स्पेस. करेक्ट वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सो इतना स्पेसियस बूट स्पेस है. आपको लॉन्ग ड्राइव में जाना है, आपको कहीं पे ट्रिप में जाना है, दिस बूट स्पेस इज वेरी गुड. वांट टू शो यू, सी यहाँ पे आपको देखना, आप देखोगे 2 टाइप का इनर साइड में 2 लाइट्स दिया गया है. हाँ, तो पीछे के लिए भी है, आगे के लिए भी आगे है. भी दिस इज हैलोजन लाइट एंड Correct. बोथ सी काफी अच्छा है. प्लास्टिक क्वालिटी बोथ आर सेपरेट है, किसी को भी चाहिए. टच पीछे में सिंगल लाइट है. ओके. ये यहाँ पे भी आप देखोगे. सो दिस इज ऑल्सो गुड. दूसरा मैं आपको बोलूँगा, दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक
जो लोग यहाँ पे नो यूज डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लास्टिक वाला सॉफ्ट setup है। प्लास्टिक, आपको एक लेदराइट फील मिलेगा, देखो आप नो डाउट डैशबोर्ड में एक लेदराइट फील मिलेगा, रियली लुक्स रियली प्रीमियम। तो ये प्रीमियम लुक Premium. दिखता है, देता है। सो ये सिर्फ आपके पैसेंजर साइड Passenger side में है, panel बट में दिस दिया लुक्स रियली प्रीमियम। नेक्स्ट और एक चीज मैं बताने जाता हूँ, द स्टोरेज। यहाँ पे मैं somebody is designed this car, I think maybe he is fond of bottles. So यहाँ पे आप देखोगे इतने स्पेस है पर एक लीटर का बॉटल, नॉट ए हाफ लीटर, ऑल द फोर डोर्स ओके। अब यहाँ पे एक लीटर का बॉटल रख सकते हो, इतना स्पेसियस है। एंड यू डोंट हैव एनी अम्ब्रेला होल्डर्स इन द डोर। अम्ब्रेला होल्डर इस डोर में नहीं है। बट बाकी बॉटल्स आप बहुत सारे Bottles- पीछे में आपका अच्छा आर्मरेस्ट नहीं है ना? पीछे वाले में आर्मरेस्ट Armrest नहीं है, is not पीछे there. वाले में आर्मरेस्ट नहीं है। सो मैं कॉन्स में भी मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा उसमें आएंगे, उसमें उसमें हम आएंगे। बताएंगे। उसकी लगे रहे वीडियो में रहे हम लोग के साथ। कौन जा रहा है? यहाँ पे आप देखोगे जो आपका वैनिटी, अच्छा ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों को दोनों में आप vanity vanity mirror मिल mirror रहा है, दिखा- बट लाइट दोनों में नहीं है ना? दोनों में लाइट नहीं है। ओके सो बिफोर वी मूव टू द कॉन्स पार्ट, डेफिनेटली एक क्वेश्चन है कि जैज इज कंसीडर्ड टू बी हाई प्राइस्ड कार। अभी i20 भी उस सेगमेंट में आ चुका है, i20 भी थोड़ा प्राइस ज्यादा है, करेक्ट बट अभी B2 सेगमेंट उसी प्राइस रेंज में आने वाला है। करेक्ट। सो एज ए कंज्यूमर डू यू फील दैट आपको जो प्राइस आप पे किए हो उसके हिसाब से यू आर गेटिंग व्हाट यू एक्सपेक्टेड, और शायद थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था, इसको बोल के हम लोग कौन में चलेंगे? सी एक्चुअली व्हेन आई हैव फाइनलाइज्ड द कार ना, जब भी मैंने फाइनल किया था, जब भी मैंने फाइनल जिस दिन एग्रीमेंट किया कार के लिए, मैं भी सेम सोच रहा था, जो मैंने जो प्राइस किया है, जो दिया है मैंने प्राइस फाइनली, उसके अगेंस्ट में मैंने जो मुझे जो डिलीवरी होगा, इज इट एज पर माई एक्सपेक्टेशन? बट डेफिनेटली व्हाट आई से, आफ्टर हैविंग द कार, आफ्टर ड्राइविंग द कार, I feel whatever Honda is claiming for this particular model, it is appropriate. Sorry to interrupt, Yeah, but the engine is remarkable. 4-cylinder, naturally aspirated engine. I think 90 bhp, 89 horsepower निकालती है engine, and 110 न्यूटन मीटर टॉर्क डिलीवर करता है engine. City के लिए that is good enough. This is as good as any luxury segment sedan, I would say. एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इसमें हिल असिस्ट ड्राइविंग मोड भी है। So that is a गुड पॉइंट, बिकॉज yes. ए So आप ड्राइवर अगर कोई स्लोप में खड़े हो तो बहुत हेल्पफुल हो जो जाता है। बॉम्बे का जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ दिस पे इज मोस्टली हिली रीजन, सो ड्राइविंग ऑन द हिली रीजन आपको थोड़ा, अगर लगता है कि आपको पता है कौन से एरिया का ये बात कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सो इस एरिया में जब जब भी ड्राइविंग होता है, उसमें मेरा मैनुअल में मुझे वो क्लच, ब्रेक, पैडल सब कुछ कंट्रोल करके करना होता था। दिस इज ओनली यू हैव टू जस्ट बिकॉज़ हिल रोड असिस्ट है तो एटलीस्ट 5 सेकंड का आपको मिल कोई जाता प्रॉब्लम नहीं है, इज वेरी इजी टू ड्राइव। है। ओके एंड सबसे बड़ी बात है, माई वाइफ शी इज ए न्यू ड्राइवर, तो शी इज ड्राइविंग वेरी स्मूथली। इतना आसान है ये गाड़ी को She is ड्राइव happy with करना। the- शी इज क्वाइट हैप्पी, एंड एक्चुअली शी ओनली इंसिस्टेड मी, उन्होंने Okay. इंसिस्ट किया है जो अच्छा, ठीक है, she liked it more. she liked more because Okay. I have first biases, but finally I have thought this is a correct decision for me, both of us. Right. Okay, so now I think positives we have covered. Definitely, mostly all So the we'll positives move are to covered. the most awaited segment of the video. But before we move to the cons part, suspense बना के रखते हैं कि माइलेज कैसा देता है ये गाड़ी। इंडियंस का सवाल, सबको यही क्वेश्चन पूछता है पहला, माइलेज के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? So actually जब भी मैंने होंडा के ओनर से CVT के बारे में डेफिनेटली सीवीटी के बारे में बात करता हूँ। होंडा के जितने सारे मेरे ओनर्स फ्रेंड्स हैं जिनके पास ऑलरेडी सीटी है, अमेज है, उनसे भी मैंने बात किया था। एक तो उन्होंने बताया, आप जब होंडा गाड़ी ले रहे हो, डेफिनेटली यू डोंट फर्स्ट थॉट अबाउट द माइलेज। तो माइलेज आप उनका कहना है 11 लाख का जो गाड़ी खरीदेगा तेल के बारे में मत सोचो। आप माइलेज थोड़ा पीछे रखो, लेकिन अभी सोचना पड़ेगा। Definitely. 107 रुपए लीटर चल रहा है जैसे चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ सिटी ड्राइव में इट इज गिविंग अप्रोक्स 9.5 to 9.8, जो एवरेज मैंने लिख रहा हूँ 9.5 जस्ट टचिंग 10 टचिंग 10 सिटी ट्रैफिक में। और मैंने मैंने लॉन्ग ट्रिप किया इसमें से, ऑन एन एवरेज इट इज गिविंग 13.5 to 14 के आसपास। considering the weight and the engine type, that is good enough. See, Honda- CVT that too. करेक्ट इन दिस CVT, But हाईवे में शायद थोड़ा और दे सकता है। और दे सकता था, बट डेफिनेटली वो ड्राइविंग मोड में यूज करते हैं। मे बी मैं और भी ज्यादा गाड़ी चलाऊंगा तो हाँ, आपको धीरे धीरे आपका उसका सेट हो जाएगा। सेट तो हो जाएगा। करेक्ट सो उस टाइम में मे बी ये ज्यादा माइलेज भी दे सकता है। राइट। तो मे बी आई कैन हैव एन अगेन रिव्यू आफ्टर 5000 किलोमीटर ऑफ। डेफिनेटली विल डू दैट। उसके बाद आपको हम अगर लोग कर चाहिए सकते हैं। 5000 किलोमीटर रिव्यू जैज का तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखें।
ओके, सो नाउ मूविंग टू दी कॉन्स पार्ट. सो आपको क्या क्या लगता है कि बेटर हो सकता था? कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होता. वी आर नॉट सेइंग कि जैज इज अ बैड कार, वी कैन नॉट से. आपके गाड़ी में बैठे हुए हैं और तो नहीं बता सकते, बाहर भी नहीं बताएंगे, बिकॉज जैज इज अ गुड कार विदाउट डाउट. सेल नहीं है बट इट्स अ गुड कार, जेन्युइनली इट्स अ वेरी गुड कार. बट कुछ ना कुछ तो खामियां रहेगी. एक्चुअली मैंने जब ये सारे सेगमेंट में जब सारे ऐसे देयर आर मे बी प्लेंटी ऑफ फीचर्स, 40-50 फीचर्स. मैंने जब ही इसको R&D कर रहा था लास्ट 3 to 4 months में, मैं सारे एस्पेक्ट में एक एक करके मैंने उसका फीचर्स को मैंने कंपेयर किया. बट सम फीचर्स आर डिजायरेबल, सम फीचर्स आर यूजर ड्रिवन. सो उसके हिसाब से आप देखोगे मे बी सम ऑफ द फीचर्स यहाँ पे जैज में दे सकते थे. इवन दे आर चार्जिंग अप्रॉक्सिमेटली 11 लाख रुपीज. सो इसमें मे बी एक रेयर एसी वेंट दे सकते थे. ओके, रेयर एसी वेंट कुड हैव बीन देयर. दिस वन ऑफ द थिंग, क्योंकि काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है, एसी काफ़ी पावरफुल है इसका. अब बट स्टिल मे बी जब भी स्कॉचिंग हीट है, सन है, तो थोड़ा एक एसी वेंट रेयर साइड में दे सकते थे. दूसरा है इनका जो मैं बोल रहा हूँ, एक आपका रियर सीट में दे शुड गिव ए हेडरेस्ट. सो या हेडरेस्ट का जो पॉइंट, राइट, हेडरेस्ट इज फ्रेंड्स, आपको ये बात बता दो, हेडरेस्ट जो रियर सीट में रहता है दैट इज नॉट ओनली फॉर कंफर्ट, दैट इज ऑल्सो फॉर योर सेफ्टी. बिकॉज आपका जो हेडरेस्ट रहता है कि अगर कोई टॉपलिंग इम्पैक्ट होता है तो दिस एक्चुअली सेव्स योर नेक फ्रॉम ब्रेकिंग. ये उस हिसाब से बना हुआ है. नॉट ओनली दैट, ये हेडरेस्ट को आप यूज़ करके गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ के गाड़ी से बाहर निकल सकते हो. हेडरेस्ट का जो यहाँ पे मेटल रॉड्स रहते हैं उसको यूज़ करके ब्रेक द विंडशील्ड एंड कम आउट. तो दीज आर सम सेफ्टी फीचर्स. रियर हेडरेस्ट, या डेफिनेटली 11 लाख कार में रियर सीट में हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग मिस. तो आई थिंक ये फीडबैक ऑलमोस्ट सभी रिव्यू वीडियोस में है. तो करेक्ट. तो वो एक है. थर्ड मैं बोलूँगा जो व्हील्स दिया है, 15 इंच का अलॉय व्हील दिया. ओके, तो आई थिंक इट शुड हैव ए 16 इंच अलॉय व्हील. हाँ, आई थिंक i20 ने भी अपग्रेड किया. उसका नया वो वर्जन में अपग्रेडेशन आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज गाड़ी का लुक काफ़ी प्रीमियम दिखता है, बट एक ही जगह पे व्हील का जो मॉडल में थोड़ा सा सबसिड करता है इसका लुक को. अच्छा, एक चीज़ हम लोग के एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि नेक्सॉन में स्टेपनी को बाहर निकालना पड़ता है. रेनो काइगर में भी बाहर निकालना पड़ता है. आपके गाड़ी में क्या बाहर निकालना पड़ता है? अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो पोजीशन कभी मुझे हुआ नहीं. जो स्टेप वो जो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो वो हम लोग इस वीडियो में भी आपको शेयर कर सकते हैं. अच्छा है कि आपको भी पता चल जाएगा, हमारे व्यूअर्स को भी पता. डेफिनेटली वो हम लोग शेयर कर सकते हैं. मैं लास्ट कॉन्स जो इसको बोल सकता हूँ, तो अभी तक हम लोग कॉन्स कितना कवर किए? आई थिंक 3 ऑफ वी हैव कवर्ड. अच्छा, 3 के बाद लास्ट आप बोल रहे? लास्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब 5 तक नहीं जाना. 5 तक मैं नहीं जाना. सेटिस्फाइड कस्टमर है सही में. जैज is actually a good car and this actually tells, because completely unbiased वो बता रहे हैं, no doubt. मैं भी स्टडी करके आया था बहुत सारे कॉन्स के बारे में, लेकिन मेरे को भी ज़्यादा मिला नहीं. देखते हैं क्या बोलते हैं वो लास्ट वाला. कॉन्स वाला मुझे ऑडिट क्या लगा, इसका साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बट इसमें जो आपका एंड्रॉयड कार प्ले के साथ जो सिंक है, दैट इज नॉट ए वॉइस असिस्टेड कमांड इज ऑल्सो देयर, बट इज नॉट ए USB और ब्लूटूथ कनेक्टेड. आपको वायरलेस नहीं है, आपको वायर लगा के करना है. अभी नया जनरेशन का जितना भी गाड़ी है सब वायरलेस हो गया. तो मैंने 2021 में ये चीज़ मे बी जैस का जो नया वर्जन आएगा उसमें ये अपग्रेडेशन डेफिनेटली एज ए कस्टमर आई विल लाइक टू सी ये वाला अपग्रेडेशन होना ही चाहिए. राइट, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट. सो कहीं नहीं आपको ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी गाड़ी लिया था, इवन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये पता नहीं था, बट मैंने जब इसको ट्राई किया ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, ये हो नहीं पाया. देन अगेन आई कॉन्टैक्टेड टू होंडा, दे टोल्ड नहीं, इसके साथ आपका वायर के साथ ही कनेक्टेड हो सकता है. तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज आई कैन से. ये प्रीमियम सेगमेंट में, प्रीमियमनेस में थोड़ा सा कमी आता है, ये इशू आता है. और कुछ आई डोंट फील पार्थो. ये बाकी जो भी मैंने 3-4 कॉन्स बताया, ये छोड़ के और कोई कॉन्स है. ओके, तो दीज आर द थिंग्स. सो सबसे क्रूशियल सवाल, एज एन ओनर, करेक्ट, 10 में कितना पॉइंट दोगे आप 10 में जैस को? 10 में एज ए ओनर मैं बोल सकता हूँ आई कैन गिव 9.5, बिकॉज एक्चुअली ठीक है. रीजन आपने दे दिया, अभी तक रीजन मिला. 0.5 आपने क्यों काटा? सी पॉइंट्स मैंने बोला ना, ये जो मैंने रिसेंटली प्रॉब्लम, अच्छा वायर का, ये वायर वाला था, वो 0.5 के लिए. नाउ एज ए आउटसाइडर, नॉट एज एन ओनर, आप भूल जाओगे आप ओन करते हो. करेक्ट. आप सब 5 गाड़ी देख रहे हो. करेक्ट. देन व्हाट विल बी योर स्कोर? तो मे बी इट्स कैन बी 9. So
पैसा खर्चा करने के बाद 0.5 बढ़ा है, बड़ा है दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू टेल. ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो समिट अप ऑल, इज इट अ थम्स अप? डेफिनेटली इट्स अ थम्स अप कार. एंड मैं एज ए बोलूँगा, मैं एज ए फैमिली ऑफ ए होंडा फैमिली, I am quite satisfied. The way they have delivered me, the way they have assisted me. Buying experience is quite good. तो Honda सर्विस आप कर अभी तक गए नहीं? अभी तक मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हुआ है. That is also अच्छा, you have gone for the first servicing. How was the experience? Very good. Honda, Toyota, they are known for their service. And even I got a call direct from the Honda head office. उनका जो एक्सपीरियंस, मेरा कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी लेके, एंड एवरीथिंग इज वेरी स्मूथलेस. हार्डली मैं एक या दो बार मैं अपने शोरूम में गया. एवरीथिंग दे असिस्टेड मी the way they can do the best. Okay. So buying experience has been good, right? काफ़ी बेटर. So I think to sum it up all, thumbs up तो मिल गया है गाड़ी को. एंड अगर आपको कुछ और प्रोज या और कॉन्स आप बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस गाड़ी के बारे में पता चले. जैज़ इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कार. आई डोंट नो वाई सेल जैज़ का इतना कम है, बट एक्चुअली द कार इज़ वेरी गुड. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हाँ, ये मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नॉलेज वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, यू विल गेट मोर वट एवर द अदर वीडियोज यू आर हैविंग. थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.